Hey, hi. So, welcome to one of the most important sessions for today, which is Theorem 9.7. This is one of the most important sessions today in the chapter circle. This theorem comes in your exam for 5 marks. It's very important. You should definitely do it now. Let's see what is the theorem. The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. First of all, we're gonna understand the theorem with an example. Then we're gonna prove it also. There are certain cases we're gonna use and we're gonna prove it also. So let's say there is a circle. There is a circle, not a very good circle, but there is a circle whose center is O. And let's say अभी मैं ऐसे कोई भी cases की बात नहीं करता हूँ, मैं randomly बात करता हूँ. यहाँ पे point B P है. So if you just see that this angle subtended by this arc is something and there is an angle subtended by this arc at remaining part somewhere. अगर ये 30 है तो ये 60 होगा. मतलब what I'm trying to say, the angle subtended by an arc at the center, ये arc के center पे बना रही है तो वो किसी और point पे अगर कहीं पे बनाती है तो उसका always double होता है. That is what is meant by this theorem. So if you understood what is the meaning of this theorem, let's prove it. How we can prove this. Now, since arc can be of three types, sir, how arc can be of three cases? Because see, arc can be minor arc. This is the minor arc. Arc can be a semicircle. This is a semicircle upper niche. And arc can be a major arc also. Let's say if I take the major arc, this one is the major arc now. So three cases. So we're gonna prove all the three cases that this theorem holds. And it's a very easy proof. Once you understand the concept, how I'm proving it, and I will definitely recommend to write it on a sheet or paper to revise it better before the exams. Okay. So first of all, what is given to us? Let's write it down. In a way, we can say that there is a circle which is given to us, जिसका center O है और radius R है. Let's say an arc, an arc AB of a circle. अभी हमने AB बनाया था, remember? So एक arc दे रखी है AB, जो हम cases में बनाएंगे अभी, ठीक है? AB of a circle जिसका रेडियस सेंटर O है और रेडियस R है, and a point P and a point P on the remaining part of the circle. On the remaining, mind my handwriting please, remaining part of the circle. Part of the circle. So what we are supposed to prove? We are supposed to prove that angle AOB is always equal to twice of angle APB. Okay. Now, in this, what we are going to do? We are going to have three cases. So we are going to do something. We are going to have three cases. Case 1 with the minor arc, case 2 with a semicircle, and case 3 with a with a major arc. Now, if that is the case, let's start. So first of all, if I draw a circle case 1 when AB is a minor arc, AB is a minor arc, आर्क के लिए ऊपर साइन लगता था, याद है तो आर्क का, ए बी इज अ माइनर आर्क. तो माइनर आर्क का मतलब वो यहाँ पे है माइनर आर्क, और यहाँ पे एक पॉइंट पी पे एंगल बना रहा है, एक सेंटर पे पॉइंट पे बना रहा है ओ पे. तो आपको क्या प्रूव करना है कि ए ओ बी ट्वाइस है इसका. तो आप कंस्ट्रक्शन सारे केसेस में करने वाले हैं, तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, उससे सब में हो जाएगा वो. सो ड्रॉ रे पी एन थ्रू ओ. अभी क्या है समझते हैं. आप क्या करेंगे, आप यहाँ से एक रे ड्रॉ करेंगे ऐसे. दिस इज द रे pn through o. Now what is going to happen, if you can see, if I label this, you can label this also, that this particular angle, let's say this is 1, this is 2, this is 3, right? You can say this. If you don't want to label, you can just write the names also. Okay, that is also. Now हमें ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के ट्वाइस प्रूव करना है, तो हम कैसे करेंगे समझो. अगर आप देखेंगे सबसे पहले ये और ये रेडियस है, isn't it? This is radius. So since OP is equal to OA, I can say that these two angles are equal. Isosceles triangle property, right? So angle OPA will be equal to angle PAO. Isosceles triangle property. Isosceles triangle property. Now, if I see this is an exterior angle, can you see some sort of diagram like this? This is an exterior angle. Exterior angle is equal to the sum of interior opposite angle. So I can say that angle AON is equal to sum of angle OPA plus angle PAO, right? OPA plus angle PAO, PAO.
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, राइट, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नाउ ये दोनों बराबर हैं, तो आप पीएओ की जगह ओपीए भी लिख सकते हैं, और ऊपर वाला हमें इन्वॉल्व भी करना था पूरा, तो आप बिल्कुल पीएओ को ओपीए लिखिए। तो अब क्या होगा, जब आपने ओपीए लिखा तो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल व्हाट, ओपीए, राइट, ओपीए। और आपको क्या प्रूव करना था, आपको यही प्रूव करना है, अभी अभी पूरा प्रूव नहीं हुआ है, एपीबी के ट्वाइस प्रूव करना है, ना कि ओपीए के। तो आप क्या करेंगे, इधर वाले पार्ट में सेम चीज, लेकिन उसमें आप ऐसे लिखेंगे नहीं, उसमें आप कैसे लिखेंगे देखिए, आपने अभी इतना पार्ट इसके ट्वाइस प्रूव किया, अगर ये वाला पार्ट भी इसके ट्वाइस हो जाए, दोनों को ऐड कर देंगे, तो आप सिमिलरली लिखेंगे उसमें, एंगल बी ओ एन विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी बी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, लेट्स से दिस इज द सेकंड पार्ट, एडिंग वन एंड टू, क्योंकि तभी पूरा बनेगा प्रूफ। सो एडिंग वन एंड टू, adding 1 and 2, what we got, we got angle AON plus angle BON, twice आपने कॉमन निकाल लिया, तो एंगल OPA प्लस एंगल OPB, राइट। सो ये हो जाएगा एंगल AOB पूरा, और ऊपर अगर आप देखेंगे ये दोनों पार्ट जब मिलेंगे एंगल AP बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल AP। सो दिस वाज माय what, this was my first case. We have done this. On the second case, what is going to happen, we are going to have a semicircle, right? So if there is a semicircle, then what we are going to do, case 2, when AB arc is a semicircle, semicircle। तो बच्चे अगर semicircle है तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो, ए बी, अब सेंटर पे ये आर्क जो है सेंटर पे एंगल बनाएगी, है ना, और यहाँ पे एक पी पे बनाएगी, हमें फिर से वही रे बनानी है, यहाँ से ओ से होते हुए जो एन तक जा रही है, पी यहाँ पे है। तो आपको प्रूव करना है एंगल एओबी कितना है, ट्वाइस है एपीबी का। बाय द वे एंगल एओबी 180 होगा तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। क्या 180 है, अगर 180 है, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि वो इन दोनों का सम है, एंगल एओएन प्लस एंगल बीओएन। और अभी अभी फ्रॉम फर्स्ट वी जस्ट प्रूव कि एंगल एओएन प्लस बीओएन ट्वाइस ऑफ दिस होता है, राइट। हाँ ये मिलके बन गया, बट ये भी तो इसका ट्वाइस ही हुआ, सो वी कैन से ट्वाइस ऑफ व्हाट, ट्वाइस ऑफ एंगल एपीबी, isn't it, from first case। So angle AOB कितना आ गया, ट्वाइस आ गया इसका, वेरी इजी सेकंड केसेस, ओके। नाउ द थर्ड केस में क्या होगा, जब हमारा AB क्या होगा, मेजर आर्क। सो व्हेन AB इज अ मेजर आर्क, व्हेन AB इज अ मेजर आर्क, मेजर आर्क, सो व्हाट वी गोना डू, वी गोना मेक दिस अ मेजर आर्क नाउ। सो यहाँ पे हमारा क्या होगा, AB, और अब हमारे पास मेजर आर्क है, तो सेंटर पे पहले बनाएगा एंगल, राइट, ये पूरा का पूरा सेंटर पे बनाएगा, फिर पी पॉइंट पे भी बनाएगा, राइट। तो यहाँ से रे जाएगी ओ से एन, राइट। सो आपको प्रूव करना है कि ये एंगल जो है इसका ट्वाइस होगा, इस बार ए बी इज अ मेजर आर्क। सो अब आपको एक्चुअली एओबी आप नहीं बोल सकते, जब एओबी के बाहर वाला एंगल बोला जा रहा है वो रिफ्लेक्स होगा, रिफ्लेक्स मतलब होता है बड़ा वाला एंगल। जैसे कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे एओबी मेरा 60 है, लेकिन अगर बाकी का एंगल वो 300 है, तो क्या वो भी एओबी है, दोनों एओबी है, मतलब दूसरा वाला जो होता है वो रिफ्लेक्स होता है, तो रिफ्लेक्स ऑफ एओबी आप शो करेंगे ट्वाइस। रिफ्लेक्स ऑफ एओबी अगर किसी का भी रिफ्लेक्स निकालना होता है, आप 360 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा है, किसी का भी रिफ्लेक्स निकालना है, तो अगर मुझे इसका रिफ्लेक्स निकालना है 360 से माइनस को, जब तो आएगा ये 300, तो 360 माइनस एंगल इटसेल्फ। नाउ 360 माइनस एंगल एओबी, अब ये एंगल एओबी इधर के बाद ये जो है ये इनसाइड वाला पार्ट है, तो आप एंगल एओपी बोल सकते हैं प्लस एंगल बीओपी इस पे। अब क्या करिए, 360 को तोड़ दो, 180, एक बार इसको दे दो 180, ठीक है, और 180 एक और बार आ सकता है 360 में, और एक बार इसको दे दो, प्लस माइनस माइनस होगा, इसलिए माइनस लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, अगर एओपी 180 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं एओपी को, तो ये बाहर वाला आता है, दैट इज एओएन। सिमिलरली फॉर दैट गाय बीओएन। और अभी अभी हमने फर्स्ट केस में पढ़ा था, इन दोनों का सम जो होता है वो ट्वाइस होता है एंगल एपीबी का, फ्रॉम फर्स्ट, राइट, फ्रॉम केस फर्स्ट। सो वी हैव रियलाइज दैट रिफ्लेक्स जो आपका आया मेजर आर्क में वो भी इसके इक्वल था, okay, and that is how we are going to prove this one, and we have done the proof for the third part also. So there were three cases. I hope this is clear to you. If not, you can repeat the session again, go through it again. Already a PDF is provided in the course too. Okay, now let's move on to the next theorem. Only this theorem we have to prove. Now other theorems we are not supposed to prove. We are going to move forward to what?
ये हो गया है, ये भी हो गया, 9.8, राइट? यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो आपने इधर एक एंगल बना रखा है, इसका ये सेम सेगमेंट ऊपर ही ये 30 है, तो अगर इसी सेगमेंट में कहीं और भी एंगल बनाता हूँ यहाँ पे, तो ये भी 30 डिग्री होगा। कहीं भी आप एंगल बना लें, लेकिन सेम सेगमेंट होना चाहिए। अगर डिफरेंट सेगमेंट में हो तो जरूरी नहीं है वो 30 हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? डजंट मीन कि 30 हो, तो डिफरेंट सेगमेंट में हो गया। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, दैट वाज थ्योरम 9.8। Theorem 9.9. If a line segment joining two points obtained equal angles at two other points lying on the same side of the line containing the line segment, the four points lie on a circle. देखो इसका सीधा सीधा मतलब है, if a line segment joining two points subtend equal angles at two other points lying on the same side of the line, मतलब same segment में। तो क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि चारों पॉइंट जो है कॉन्साइक्लिक है। कॉन्साइक्लिक मतलब सर्कल पे लाई करेंगे। अगर ऐसा कोई केस होता है तो है भी ऑब्वियस है, राइट? आगे चलते हैं। 9.10 अब इंपॉर्टेंट आ रहा है। 9.9 इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, 9.8 इंपॉर्टेंट था, 9.10 भी इंपॉर्टेंट। देखिए साइक्लिक क्वाड्रेटिल क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रेटिल का मतलब होता है वो क्वाड्रेटिल जो सर्कल पे लाई करता है, जिसके चारों वर्टिसेस, जैसे ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटिल है। साइक्लिक कौन साइक्लिक एक ही बात होती है। बाय द वे, अगर मैं इसके चारों वर्टिसेस ऐसे बनाता, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक हवा में, यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक के लिए चारों वर्टिसेस क्या होने चाहिए? सर्कल पे होने चाहिए। साइक्लिक की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है हमेशा 180 होता है। बोथ पेयर अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी भी 180। तो अगर साइक्लिक है तो ये होल्ड करेगा। बाय द वे, अब इसका कन्वर्स भी होता है। थ्योरम 9.11, सिर्फ 9 पॉइंट कहता है 11 कि अगर सम ऑफ अ पेयर एक भी पेयर का सम 180 हो जाए तो वो साइक्लिक हो जाता है। क्यों? आपको अगर शो करना है कि एक भी पेयर अगर 180 हो जाए तो वो ऑटोमेटिक साइक्लिक हो जाता है। याद रहे, साइक्लिक है तो दोनों पेयर का सम 180, लेकिन अगर एक ही पेयर आप 180 करते तो साइक्लिक फ्लो हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिल के चारों एंगल का सम होता है 180, सॉरी 360। तो अगर आपने दो का सम 180 लिख दिया है तो बाकी का भी तो 360 से माइनस करके फिर 180 आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इंप्लाइड है। इसलिए आप एक ही शो करते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखें इस चीज का। तो अगर एक ही पेयर हमारा 180 हो जाता है तो वो साइक्लिक हो जाएगा। मतलब अगर आपको कभी भी साइक्लिक शो करना है तो आप सीधा सीधा एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल का सम 180 शो कर दीजिए, ठीक है? वी आर डन विद दैट। ओके, सो दीज वर द थ्योरम्स दैट वी हैव डन। तो अगर हम अपना थ्योरम चार्ट निकालें जो हमने बनाया था, जहां तक मुझे याद है, we have done those theorem chart somewhere, right? Did you do it over here? तो फिर से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा, right? मैंने बोला था ये सबसे बढ़िया चीज है, ऐसे याद करना। 9.7 था कि अगर एक आर्क जो है सेंटर पे सबटेंड करती है डबल, देन व्हाट? देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, पार्ट ऑफ सर्कल, राइट? उसके बाद देन किससे? देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। 9.8 जो है सिंपल सिंपल है। एंगल इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट क्या होते हैं? एंगल इन सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं। तो इसको ब्लैक से इससे दिखा रहा हूँ क्योंकि ये पार्ट बाय पार्ट में नहीं है, एक ही स्टेटमेंट को दो में ऐसे तोड़ के कर रहा हूँ, ठीक है? 9.9 इतना इंपॉर्टेंट है। 9.10, 9.10 कि अगर साइक्लिक है तो अपोजिट पेयर्स का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है? बी एंड बी का डिस्टेंस एंगल कितना होगा? और अगर मेरे पास 9.11 ले, अगर एक भी पेयर का सम 180 हो जाए, एक भी पेयर का सम, तो वो क्या हो जाएगा? साइक्लिक। बस एक पेयर, आप पेयर होंगी, कोई सा भी पेयर। तो ये आपके पास थ्योरम का चार्ट है पूरे चैप्टर का। देखिए कितना कितना हमने कंसाइज कर, आई नो बेड हैंड राइटिंग बट वी हैव कंसाइज्ड आवर ऑल थ्योरम्स इन वन शीट। आपको ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, यू कैन राइट इट डाउन समवेयर, और ऐसे रिवाइज करिए सारे थ्योरम। Okay, so now we are coming to the stage where we are starting the final exercise finally. Before we start with the final exercise, we are going to do some examples of it also. So this is my example number 2, and then we have this diagram with me over here. Okay, now so there's this figure. We are supposed to
वी आर सपोज टू सॉल्व दिस. CD इज अ कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस. एक बात मैं पहले आपको बता, कभी भी अगर कॉर्ड मेरी, कभी भी इफ माई कॉर्ड इज इक्वल टू द रेडियस, तो समझ जाना इक्वेटोरियल ट्राइंगल बनने वाला है. ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एक कॉर्ड देता हूँ, तो यहाँ पे एक सेंटर है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और मेरा कॉर्ड भी रेडियस के बराबर, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया. और इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं भाई. ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखें. तो अगर सर्कल में अगर कहीं 60 डिग्री दिख रहा हो, या फिर ये वाली कंडीशन, अगर सेंटर पे कहीं पे 60 डिग्री दिख रहा है, और या फिर ऐसी कोई कंडीशन दिख रही है, तो वो हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता है. सेंटर पे अगर 60 डिग्री होता है तो देखो क्या होगा. अगर सेंटर पे 60 हो गया बाबू, ये दोनों बराबर होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल से, तो ये एक्स तो ये भी एक्स, दोनों बराबर. तो 60 प्लस एक्स इक्वल टू 180. तो 2x इक्वल टू 180, 60 से माइनस करेंगे तो 120. तो x फिर से क्या आ जाएगा, 60, मतलब तीनों 60 आ गए इक्विलेटरल ट्राइंगल. सेंटर पे भी अगर 60 आता है तो भी इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात होने वाली है. तो ये दोनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए एग्जाम्पल और एनसीईआरटी क्वेश्चन की. ठीक है, सीधा से यह एक कंसेप्ट है कि अगर कॉर्ड मेरा रेडियस के बराबर होता है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेंटर पे अगर 60 होगा तो भी वो इक्विलेटरल ट्राइंगल. So this is my concept. Okay. Now what we are supposed to prove? We are supposed to prove that this angle is in fact 60 degree. अगर ये सब गिवन है कि हमें कॉर्ड जो है, CD कॉर्ड जो है, ये CD वाला कॉर्ड हमारा रेडियस के बराबर है, राइट. अच्छा, अब इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये भी रेडियस है, क्योंकि बराबर है. बाय द वे, अगर ये हमारे पास रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ए बी मेरा डायमीटर है, राइट. ए बी मेरा डायमीटर है. जस्ट अ सेकंड बच्चे, आई एम गेटिंग कॉल. Yes, where were we? Sorry about that. It wasn't. Yeah. So where were we? We have to prove this is 60. Now, if all these three are radius, that means this triangle right over here is nothing but an equilateral triangle, isn't it? This is what 60 degree. Yes. और अगर ये 60 डिग्री है बच्चे, अगर ये 60 डिग्री है, तो आप ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पे सेंटर पे 60 बन रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट पे कितना बनेगा? आधा बनेगा उसका, 30. और आपको ये भी पता है कि एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री. तो ये वाला पार्ट जो है ये 30 हुआ, ये आपका 90 हुआ, क्योंकि एंगल इन सेमी, अगर ये 90 तो इधर भी 90 हुआ. अभी 90 है, ये 30 है, तो बाकी वाला 60 ही होगा. 180 से सब्ट्रैक्ट करिए. एक बार फिर से समझते हैं हाउ वी डिड इट. लेट्स अंडरस्टैंड इट अगेन. Yes. So this was 60, right? Because equivalent triangle actually all three are 60. अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, क्योंकि अगर हम इस आर्क की तरफ से देखें तो ये आर्क यहाँ पे 60 बना रही है, और ये आर्क कहीं और पे फिर 30 बनाएगी. अब बात करें इस वाले एंगल की, 90 होगी, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90, तो ये रिमेनिंग पार्ट भी 90 लीनियर फेस है. अभी 90 एक ट्राइंगल है जिसमें 90 है, 30 है, तो 120 हुआ. तो 120 180 से माइनस होकर 60 डिग्री देगा, और प्रूव हो गया. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ. सो लेट्स डू दिस. हाउ वी आर सपोज्ड टू राइट इट डाउन. We'll write since OC is equal to OD is equal to CD radius, that implies triangle COD is an equilateral triangle, and that implies that angle COD is 60 degree. And then we can say कि अगर ये 60 degree है, तो angle CBD will be half of it, half of 60 degree, that is 30 degree. पूरा थ्योरम लिखेंगे आप. Theorem 9.7 की statement, the angle separated by an arc in the center is double the angle separated by remaining part of the circle. तो ये हमारे पास 30 आएगा. हमारे पास also angle ACB is equal to 90 डिग्री. ये 90 डिग्री एंगल इन सेमी सर्कल, सबका रीजन लिखना होता है. एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री. ठीक है, हमेशा ध्यान रहे सेमी सर्कल में जो एक एंगल होता है इज ऑफ 90 डिग्री. देन एंगल BCE will be 180 में से माइनस किया 90, राइट. ये क्यों? लीनियर पेयर, क्योंकि सम होता है 180, ये भी 90 हो गया. नाउ यू कैन से दैट in triangle BCE, angle BCE
प्लस एंगल सी बी डी बोलेंगे या फिर सी बी ई बोलेंगे, ज्यादा बेटर है, प्लस एंगल जो निकालना है ए ई बी इक्वल टू 180 डिग्री. So this is 90, this is 30, this is we have to find. So 180 degree, angle AB will be 180 degree. We say we are going to subtract over, we will subtract 120 and this will be 60 degree. So angle AB is equal to 60 degree. And we are done with this. Okay. So this was supposed to be proved that angle AB is 60 degree. बहुत important question है by the way, एग्जाम के लिए important question है, तो definitely करना चाहिए. Okay, next question. करने बाकी भी चाहिए लेकिन ये तो छोड़ना ही नहीं चाहिए. चलिए एग्जाम्पल 3 करते हैं. Is this figure? कहता है in figure ABCD is cyclic quadrature in which AC and BD are its diagonal. Angle DBC is 55 degrees. Angle BAC is 45 degrees. We have to find angle BCD. आपको BCD एंगल निकालना है. तो सबसे पहले अगर ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा. क्यों? क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी 45 होने वाला है. क्योंकि अगर मैं देखूं तो ये इधर 45 बना रहा है ऐसे, तो सेम सेगमेंट में इधर भी 45 बनाएगा. अब ट्राइंगल में 45 55 मतलब 100 है, तो बचा कितना 80, तो यही होगा 80. ट्राइंगल बीसीडी निकालना है, राइट? कैसे करेंगे? एंगल बीडीसी विल बी इक्वल टू एंगल बीएसी इक्वल टू 45 डिग्री. एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सेम सेगमेंट आर इक्वल, segment are equal. Now if they are equal, after that in triangle BDC, what we're gonna do? We are gonna have angle B plus angle D plus angle BCD is equal to 180 degree. Angle some property of a triangle. Some property of a triangle. Angle B is 55 degrees. Angle B is 45 degrees. Angle BCD हमें निकालना है. तो कितना हो जाएगा बच्चे? 100 माइनस करेंगे 180 से and we'll get 80, right? So you'll get 80 degrees. So this is the angle which is 80 degree. Okay. So हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 में हम सारे एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे, एग्जाम्पलर भी करेंगे. फुल नंबर चाहिए ना सर्कल्स में. चलो अभी वाला देखते हैं. हमें प्रूव करना है. इसके साथ साथ मैं एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी कराने वाला हूँ क्योंकि वो सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन नंबर 10. देखते हैं कि दोनों क्वेश्चन सेम कैसे हैं. फिर समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 और एग्जांपल नंबर 4 आर द सेम क्वेश्चंस. लेट्स सी हाउ दे आर सेम और दोनों में अंतर क्या है, एग्जाम में कैसे आने वाला है. दोनों में से दोनों आने चाहिए. ठीक है. ओके. सो टू सर्कल इंटरसेक्ट, दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं विद एडी एंड एसी या डायमीटर्स ऑफ टू सर्कल, दोनों डायमीटर है. प्रूव करना है कि बी लाई करता है बीसी पे. अगर आपने यूक्लिड पढ़ा है हमेशा तो आपको पता होना चाहिए अगर कभी भी एक पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर लाई करना है तो 180 डिग्री बनाना चाहिए. मतलब अगर 180 डिग्री है तो लाइन है और लाइन है तो 180 डिग्री है. ठीक है, सीधी सादी बात है. ठीक है भाई. इसे स्ट्रेट एंगल भी इसी वजह से कहा जाता है, जब भी तो स्ट्रेट लाइन से अप्लाई करेगा. ठीक है. और ये भी बात वो की वही कह रहा है. The circles are taken two sides of a triangle taken as diameter. इसमें लेबल कर दिया है, डायग्राम भी दिया, इसमें डायग्राम नहीं दिया था. प्रूव कह रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो बी है यहाँ पे देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज ऑन द थर्ड साइड, लाइज ऑन द थर्ड साइड. इसमें डायग्राम दिया, इसमें नहीं दिया, तो दोनों सेम क्वेश्चन है एट द सेम टाइम. सॉल्यूशन तो क्या करने वाले हैं? यू कैन सी दैट एंगल एबीडी is equal to angle ABC. Why? Because both are 90. Because both are in semicircle. ये दोनों डायमीटर हैं, तो ये भी सेमीसर्कल में, ये भी सेमीसर्कल में, and that is why ये दोनों 90 होंगे. Angle in a semicircle is of 90 degree. Angle in a semicircle is 90 degree. अब दोनों को ऐड कर दो, एंगल ABD प्लस एंगल ABC, तो 90 plus 90 will be 180, and that implies that B lies on BC और B point of intersection lies on the third side. Okay, so आपको दोनों मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, देखिए रिपीट भी होते हैं ऐसे. That was example number 4. Now I think the another important example, that is example number 4, बहुत important. देखिए इसको कैसे करना है. कहता है prove that the quadrilateral formed by the internal angle bisectors of any quadrilateral is cyclic. कहता है कि अगर मान लो आपके पास मैंने क्वाड्रिलेटरल दे दिया ऐसे
और इसके एंगल्स बाइसेक्ट कर रहा है कोई, ठीक है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब कि ये एंगल बाइसेक्टेड है, ठीक है। और फिर क्या है, ये वाला एंगल भी बाइसेक्टेड है, ठीक है। ठीक है, ये वाला एंगल बाइसेक्टेड है। तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। और फिर ये वाला एंगल भी बाइसेक्टेड है, और फिर ये वाला भी एंगल बाइसेक्टेड है, ठीक है। थोड़ा सा इसको जरूरी नहीं एक्स्ट्रा इतना बनाना, अंदर की क्वाड्रेटर बन गया, तो मतलब अंदर एक क्वाड्रेटर बन रहा है, देखो आप। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें, थोड़ा सा गलत बन रहा है, एक सेकेंड। तो जब मैं बनाता हूँ तो ये एंगल बाइसेक्टर ऐसे निकलेगा, इसका जाएगा ऐसे, ये सही है, ठीक है। तो जब इसके एंगल बाइसेक्टर बनाओगे ना बच्चे, वो आगे जाके ऐसे ही मेक करेंगे, दोनों एक पॉइंट पे, इस दोनों के एक पॉइंट पे। तो ये दोनों इसके इक्वल है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों इक्वल हैं, और ये दोनों भी इक्वल हैं। आपको प्रूव करना है कि जो अंदर एक छोटा सा क्वाड्रेटर बना है, ये क्या है, याद रहे, ऐसे ही जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ मिलेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक क्वाड्रेटर मिल जाएगा, ई एफ जी एच, मान लेते हैं इसका नाम ये देखिए। आपको प्रूव करना है एक साइक्लिक क्वाड्रेटर, ये क्या है, एक साइक्लिक। और साइक्लिक कैसे होता है, जब एक पेयर अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो, मतलब किसी भी वन पेयर, आप ऊपर वाले का भी कर सकते हैं, नीचे वाले साइड वाले का, मैं इन दोनों का करने वाला। अगर मैंने सम हाउ टू प्रूव क्या करना है वैसे इसमें, कि ई एफ जी एच इज साइक्लिक, साइक्लिक, सो विल गेट वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स 180। अब कैसे होगा ध्यान से सुनिए, देखिए। इसको अगर मैं बोलूं कि भाई ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ठीक है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, आपको इजी करनी है, 5 6 7, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भाई यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल वो बी, है ना, एंगल ई निकालना है, ठीक है, ऐसे करें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो ये 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल से इसका सम 180 होगा तीनों का। अब अगर मैं यहाँ से एंगल 3 निकाल दूँ तो क्या होगा, 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2, माइनस को मैं निकाल दिया। और एंगल 1 किसका हाफ है, देखिए, एंगल ए का हाफ है, राइट। और ये किसका हाफ है, एंगल डी का हाफ है। तो क्या कॉमन निकलेगा, हाफ, तो माइनस हाफ कॉमन, एंगल ए प्लस एंगल डी। तो इतना तो सबको क्लियर होगा कि एंगल 3 कितना आया, 180 में से ये माइनस कर दिया हमने। अब जब आपने ये माइनस किया तो बच्चे सिमिलरली क्या होगा, एंगल जो हमारा ये वाला आएगा, ठीक है, ये वाला एंगल 6 बोला है, 7 बोला है, इसको 8 बोलो, एंगल जो 8 आएगा, आप सिंपल नाम भी दे सकते हैं, ए डी ऐसे देखिए। एंगल 8 जो आएगा, वो 180 में से आप क्या माइनस करेंगे, हाफ ऑफ बी एन सी, यस यू आर करेक्ट, सिमिलरली इस वाले पे। अब देखें, अब ये एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, तो एंगल 4 क्या हुआ मेरा, 180 माइनस एंगल ए प्लस बी, राइट, वर्टिकली अपोज एंगल से, वर्टिकली अपोज एंगल से बराबर हो जाएगा। और ऐसे ही एंगल 5 क्या होगा, इसके बराबर होगा, तो 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस सी से, वर्टिकली अपोज एंगल्स अगेन। नाउ व्हेन यू विल ऐड बोथ ऑफ देम, इट शुड कम आउट 180। अगर 180 आ गया 4 और 5, तो प्रूव हो जाएगा साइक्लिक। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5, तो दिस विल बी 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस डी, प्लस 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस सी। तो क्या होगा, 180 180 होगा 360, और दोनों से हाफ कॉमन निकलेगा, तो बचा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी, और इन सब का सम होता है 360। 360 का जो हाफ होगा वो होता है 180, तो आपने 360 बचा में से हाफ होता है 180 आ गया, क्योंकि एक पेयर अपोज एंगल का सम 180 है। डाटा इंप्लाइज जो अंदर वाला जो क्वाड्रेटर है वो साइक्लिक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ क्या किया है, एक क्वाड्रेटर दे रखा था आपको, इसके इंटरनल बाइसेक्टर्स थे ऐसे, फिर इस पर ये ऐसे। आपने क्या किया, पहले इन तीनों में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, ये जो एंगल आएगा ये हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, वटेवर ये जो नाम था, 180 से सब्ट्रैक्ट करके, ऐसे इधर भी आएगा 180 से सब्ट्रैक्ट करके हाफ, राइट। और ये दोनों बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो इसको ये ऐसे लिखते हैं, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, 360 में से 180 घट जाएगा और 180 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटर के चार एंगल्स हैं 360 होता है।
Those were the examples. Now in the next session, we are going to do the exercise for this final exercise of this chapter. Okay, see you in the next session then.